chemical bonding. I will start from scratch. पिछले क्लास में कौन कौन था इसमें स्टूडेंट मेरे क्लास में? रेज योर हैंड. लास्ट क्लास में जो प्रीवियस क्लास मैंने लिया था. ओके, व्हाट इज बॉन्ड? व्हाट इज बॉन्ड? The force which holds atom together is called bond. Atom form bond na? What is the difference between H and H2? You know, there is a bond in H2, but this is atom. Clear? So why is the bond formed? First of all, what is bond? The force which holds atom together is called bond. Clear? Now the second question is, why is the bond formed? बॉन्ड क्यों बनता है भाई? H plus H, H plus H gives H2. Okay, this H combined with this atom H to form H2. Why is the bond formed? There are many theories regarding the chemical bonding. Okay, the first one is valence bond theory. There are so many theories. Valence bond theory, but it has some drawback. After that, MOT, molecular orbital theory आया. ओके, वैलेंस बॉन्ड थियरी में क्या प्रॉब्लम था वो मैं बताऊंगा. देन आया मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी. इसके बाद आया CFT, क्रिस्टल फील्ड थियरी. इसके बाद आया LCT, ligand LFT, ligand field theory. So there are 4 theory regarding the chemical bond. Okay, but basic is valence bond theory. According to why the bond form? According to valence bond, only valence electron participate in bond formation. Only valence electron participate in, as the name suggests. Clear? So why is the bond formed? H plus H gives H2. The bond is formed first to complete its octet. To complete its octet. And duplet in case of helium. Clear? The second is to gain stability. When the bond is formed, keep in mind student, most important part. Whenever bond is formed, energy is released. Whenever bond is formed, energy is released. And when energy is released, the molecule becomes stable. If I ask you H plus H gives H2, this is the reactant side, this is the product side. Okay, left hand side, right hand side. Which one is stable? Okay, because this is unstable. This is unstable. These two atoms are unstable. To gain stability, they form bond. So this is after, whenever bond is formed, energy is released. Clear? So first thing is what is bond. The second thing is why is the bond formed. Clear? How is the bond formed? Now the next question is how is the bond formed. So the first is, there are 3 type of bond, you know. There are 3 primarily bond. Which one? Ionic bond, which is also called electrovalent bond. Second, covalent bond. Third, coordinate bond. Okay, but there is one more important theory is when the force of attraction, when the force of attraction is greater than force of repulsion. Force of repulsion. When the force of attraction is greater than force of repulsion, bond is formed. And because attraction is greater than repulsion, and which takes place in case of hydrogen. But in case of why helium He2 does not exist. You know why He2
You know He? Helium. He exists as only He, not He2. Helium atom is more stable than helium because when two atoms, helium atom are together, there is more repulsion. Yeah, in case of He2, force of repulsion is greater than force of attraction. That's why He2 does not exist. Clear? This is one theory. But according to molecular orbital theory, who is in class 12? Yes, tell me. चलो बताओ. He2 does not exist on basis of MOT. क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? बोलो. कौन कौन 12 में है? कोई जानता है? एनीवन? कोई शर्माने का बात नहीं है, मैं बताऊंगा. Yes. बट हम थोड़ा लेवल जानना चाहते हैं. कोई बात नहीं. बताओ. One answer. कोई जानता? स्टार्ट हो गया. According to MOT, He2 does not exist. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से तो बता दिया. ठीक है. 9 को भी समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा, सब आ जाएगा. तो देखो, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ, सपोज एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, दोनों कंबाइन हो रहा है. दिस इज बी, दिस इज ए एंड फॉर्म H2AB like this. How it is formed? In this case, force of attraction is greater than force of repulsion. कैसे? देखो, ये HA है न्यूक्लियस, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, क्लियर? और HB यहाँ पे है न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, फार डिस्टेंस पे है, ठीक है ना? ये EB है और ये PA है, ठीक है? तो न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा? रिपल्सन फोर्स. देयर इज ए रिपल्सिव फोर्स. नाउ दिस न्यूक्लियस अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस न्यूक्लियस अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन. क्लियर? This nucleus attract this electron also, and this nucleus attract this electron also. But there is a new repulsive force. This repulsive force. So how many attractive force and repulsive force are there? 1, 2, 3, 4. There are 4 attractive forces and 2 repulsive forces. Which one? Between nucleus and between electrons. So in this case, force of attraction is greater than force of repulsion. That's why H2 bond is formed. But in case of H2, force of repulsion is greater than force of repulsion. But according to MOT, according to MOT, He2 does not exist. Why? ये आता है ज्वाइंट वगैरह में, ये आता है क्यों? There are how many helium atoms are there? 2, and the electronic configuration of each helium atom is 1s2. Here also 1s2. So when this is the atomic orbital, 1s2, 1s2. According to MOT, when 2 atomic orbital combines, it gives rise to 2 molecular orbital, isn't it? What is the name of this molecular orbital? Which molecular orbital is this? This is sigma 1s. Why sigma 1s? Because s orbital form sigma bond, and this one is called sigma star. This is bonding molecular orbital. This is anti-bonding molecular orbital. Okay. How many total electrons are involved in this bond formation? 4. 2 plus 2. So according to Hund's rule,
These 2 electrons, first one orbital accommodate not more than 2 electrons, the rest one go in the higher energy state. Clear? So 2 in bonding, 2 is anti-bonding. Clear? So bond order will be equal to number of bonding electron minus number of anti-bonding electron divided by 2. Clear? How many bonding electrons? 2 minus anti-bonding 2 by 2 is equal to, since the bond order comes out to be 0, that's why Ag2 does not exist. So it is proved by MOT. Clear? So in any molecule, if the number of bonding molecular orbital is equal to the anti-bonding, the bond order will be 0. Clear? Any to exist? No, because इसमें भी क्या होगा? इसलिए नोबल गैस में नोबल गैस डज नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड. कोई ऐसा नोबल गैस है जो कि बॉन्ड बनाता है? हाँ, क्यों बनाता है xenon? बोलो. हाँ, जेनॉन बनाता है. ठीक है, क्यों बनाता है जेनॉन? क्योंकि जेनॉन का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो तुम्हारा ऑक्सीजन के बराबर है, ऑलमोस्ट सेम है. क्लियर? तो जब ऑक्सीजन बॉन्ड बना सकता है तो जेनॉन भी बना सकता है. ठीक है, यही रिसर्च का पहला ये था, हमारा क्लू था. केमिस्ट को मिला, दैट इज साइंटिस्ट को यही मिला कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ जेनॉन इज ऑलमोस्ट सेम एज ऑक्सीजन. तो जब ऑक्सीजन बना सकता है तो ये भी बना सकता है. क्लियर? Okay. So why is the bond formed? To complete its octet, to gain stability. Why is the how is the bond formed? तो सब लोग जानते हो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. How is bond? How it is formed? अगर तुमसे कोई पूछेगा कि write down the definition of electrovalent bond, so how will you write? How will you frame it? कैसे बनाओगे? कैसे लिखोगे? Electrovalent bond is formed by losing or gaining of electron. तो क्लास 10 में आता है बोर्ड एग्जाम में. By losing or gaining of electron. Losing टेंडेंसी किसमें होता है? मेटल्स में होता है. इसमें होता है? क्यों होता है? लूजिंग टेंडेंसी. हाँ, वेरी गुड. मेटल्स में क्या होता है? लूजिंग टेंडेंसी. अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय मेटल, मेटल बोलते हो तुम लोग, क्या होता है? मेटल क्या होता है? बोलो. अगर तुमसे कोई पूछे मेटल बताओ क्या होता है, तो क्या बोलोगे? सोनोरस, यही बोलोगे ना? नहीं, ये नहीं, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया. हाँ, डक्टाइल नहीं. क्या होता है? The keys with which an element loses electron. The keys with which an element loses, मतलब जितनी आसानी से कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे वो मेटल होगा. और जितनी आसानी से मतलब जिसका लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वही होगा, अपना लूज करेगा और वही क्या बोला जाएगा? उसी को मेटल. ठीक है, तो जितने मेटल्स होते हैं उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा. ठीक है, तो मेटल के पास क्या होता है? लूजिंग टेंडेंसी. समझ में आ रहा है? लूजिंग टेंडेंसी होता है, और जब लूजिंग टेंडेंसी होगा तो लूज करने के बाद क्या बनाएगा? लूज करने के बाद कैटायन बनाएगा. कैटायन बनाएगा तो. और नॉन मेटल, नॉन मेटल के पास क्या होता है? गेनिंग टेंडेंसी. चलो, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी या गेनिंग टेंडेंसी. क्यों गेनिंग टेंडेंसी होता है? गेनिंग टेंडेंसी क्यों होता है? बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जानते हो तो क्या होता है? पीरियोडिक टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है
पीरियोडिक टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर स्टूडेंट है, क्या होता है? हाँ, देखो देखो, जो भूल करने वाला था वो यही कर रही है। नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिलीज। रिक्वायर्ड होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल में, किसमें होता है? हाँ, और इसमें एनर्जी इज रिलीज। एक एंडोथर्मिक है और एक एक्सोथर्मिक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक और नाम है, क्या है? इलेक्ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। देखो, केमिस्ट्री का तुम लोग 80% प्रॉब्लम सिर्फ नाम से ही सॉल्व कर डालोगे। अगर केमिस्ट्री में अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो तुम लोग जो हेडिंग है ना, नाम, जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा है उसको डिकोड कर लो, तुरंत मिल जाएगा। अगर तुमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं समझ में आ रहा है तो इतना तो समझ में आ रहा है ना, एफिनिटी मतलब अफेक्शन, अफेक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। एक तो ये मीनिंग हो गया। दूसरा, इसका मतलब समझो, देखो गेन है कि नहीं है? किसका गेन? इलेक्ट्रॉन। किसका? इलेक्ट्रॉन का। और एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी मतलब एक थर्मोडायनामिक वर्ड है, एनर्जी के लिए यूज होता है ना। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन गेन करने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है टू फॉर्म अनायन, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या हो जाएगा? वो अनायन हो जाएगा, ठीक है ना। सो द एनर्जी इज रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम टू फॉर्म अनायन। ये है, देखो ये सब एक्स क्या है? मान लो कि हेलोजन है। हेलोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स इन केमिस्ट्री, क्लियर? Which should be isolated and then two in gaseous system, clear? इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। इसको कितना, how many electron is required to complete its octet? 1। तो एक इलेक्ट्रॉन ये भाई साहब कहीं से ले लिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? x माइनस अनायन प्लस एनर्जी इज released, clear? So this is all about electron gain enthalpy और electron affinity। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? एक तो मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए, ठीक है ना। जब मेटल नॉन मेटल, जैसे अगर मैं पूछूं कि NaCl है, ठीक है, इसमें कौन सा बॉन्ड है? कैसे पता चला? हाँ, एक Na क्या है? मेटल, और Cl क्या है? नॉन मेटल, ठीक है। तो मेटल नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड। अगर मैं बोलूं कि CCl4 में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? कैसे पता चला? तो अगर एग्जाम में आ जाएगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर या ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ MgO, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या स्ट्राइक होना चाहिए? हाँ, तभी ना ड्रॉ कर पाओगे। हाँ, जहाँ आयनिक है वहां कोवेलेंट बना के आ जाओगे, जहाँ कोवेलेंट है वहां पे आयनिक बना के आ जाओगे। कुछ तो स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में। तो क्या स्ट्राइक करना चाहिए? पहले तो देखना चाहिए कि ये जो दो एटम है इसमें कौन सा मेटल है, कौन सा, या दोनों नॉन मेटल है कि नहीं। तो ये बताओ, ये Mg तो जानते हो ना क्या है, और ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। ऑब्वियसली जब ये कंफर्म हो गया कि मेटल है और नॉन मेटल है, ठीक है, जब कंफर्म हो गया मेटल नॉन मेटल, तो आराम से तुम लोग बना सकते हो, है कि नहीं। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 Mg 2 इलेक्ट्रॉन,
होता है। चलो दो ऐसे लिख देता हूँ डॉट क्रॉस, और नीचे लिखना पड़ेगा 282 है ना, और ऑक्सीजन 6 1 2 3 4 5 6 क्लियर। तो कैसे जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो क्या बन जाएगा MgO। अब MgO के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लियर। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ये बॉन्ड बन गया तो कौन सी एनर्जी रिलीज होगी, मैं तो पहले ही बोला हूं कि जब भी बॉन्ड बनता है वेदर इट इज कोवेलेंट और आयनिक, एनर्जी रिलीज होता है कि नहीं होता है। NaCl बना तो उसमें एनर्जी रिलीज होगा, कौन सा एनर्जी रिलीज होगा, बोलो। NaCl में Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया Cl को, तो कौन सा एनर्जी रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटम्स में होता है, मॉलिक्यूल में नहीं होता है, ठीक है, और वो भी मेटल में नहीं होता है, नॉन मेटल में, ठीक है। बताओ NaCl में कौन सा एनर्जी रिलीज होगा, whenever a bond is formed energy is released, clear। so which bond is formed, ionic bond, so after the formation of bond energy released, which energy, lattice energy, which energy, lattice energy, ठीक है। लैटिस जानते हो, तो जानते हो क्या होता है लैटिस, सॉलिड स्टेट एक्चुअली में हटा दिया गया है, आउट ऑफ सिलेबस कर दिया, बट बता देंगे तुमको, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। चलो, तो NaCl कैसे, लैटिस एनर्जी कैसे निकालते हो, देखो लैटिस एनर्जी, देखो सबसे पहले सोडियम सॉलिड है कि नहीं है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एक लाइन 4 लाइन का इसका न्यूमेरिकल आता है, स्टूडेंट देखते ही बेहोश हो जाता है, लेकिन है एक लाइन का आंसर, है एक लाइन का आंसर, ठीक है। ठीक से पढ़ोगे तो सब पता चल जाएगा। सोडियम है सॉलिड में है तो, और क्लोरीन गैसियस स्टेट में है कि नहीं है, बताओ, तभी नहीं ये बनेगा NaCl, बोलो, बना, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट बन रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड डेल्टा HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, क्लियर। नाउ अगर हम इसको थ्रू प्रॉपर चैनल चले, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाले और क्लोरीन को दे दे, ठीक है, तो सोडियम को से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले बताओ, इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन किससे निकालेंगे, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम से निकालेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल का डिफिनेशन है ना, ठीक है। तो ये तो सॉलिड में है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, गैसियस स्टेट में चेंज करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, कैसे होगा, इससे इसमें चेंज करना है, बताओ कैसे होगा, सब्लिमेशन एनर्जी देंगे, अरे सॉलिड से गैस में कौन सा एनर्जी देंगे, सब्लिमेशन एनर्जी, चलो S लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम गैसियस से Na+ निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, ठीक है, तो कौन सी एनर्जी देंगे, Na गैस से Na+ गैस हो गया, कौन सी एनर्जी देंगे, हाँ, आयनाइजेशन पोटेंशियल दे दिया, क्लियर। नाउ Cl2 से इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन में चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में चला जाएगा, लेकिन क्लोरीन एटम में जाएगा, मॉलिक्यूल में, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल को एटम में चेंज करना पड़ेगा, तो डिसोसिएशन एनर्जी देंगे। एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए डिसोसिएशन एनर्जी D लगता है, तो हाफ के लिए कितना लगेगा, D/2, तो चलो D/2 मैंने डिसोसिएशन एनर्जी दे दिया, तो ये चेंज हो गया किसमें, Cl में, और गैसियस स्टेट है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है किसमें चला जाएगा,
क्लोरीन में जब चला जाएगा तो कौन सी एनर्जी निकलेगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? रिलीज। और रिलीज के लिए क्या कौन सा साइन यूज करते हैं? माइनस। तो ये माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे अब दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड काम करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये दोनों जो है मिल गया, ठीक है। और मिलने के बाद ये तुरंत बना दिया NaCl। क्या बना दिया? और जब NaCl बनेगा तो कौन सी एनर्जी निकलेगी? लैटिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी? लैटिस एनर्जी। चलो इसको लैटिस एनर्जी लिख देते हैं। और लैटिस एनर्जी रिलीज होगी तो उसके लिए क्या चाहिए? माइनस। अब टोटल देखो क्या हो रहा है खेला। दिस एनर्जी शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एनर्जी। इसका मतलब कि डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल, सॉरी सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस V/2 माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लैटिस एनर्जी। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो Na और Cl के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो कौन सी एनर्जी रिलीज होती है और कितनी एनर्जी रिलीज होती है? इस फॉर्मूला से तुम निकाल सकते हो। इस फॉर्मूला से तुम देखो सारा वैल्यू दिया रहेगा, लैटिस एनर्जी निकालना होगा, ये एनर्जी। तो सारा वैल्यू रख दो। 5 लाइन का क्वेश्चन रहेगा, 1 लाइन का आंसर आ जाएगा। 5 लाइन का क्वेश्चन रहेगा और 1 लाइन का आंसर। तो इस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल का आयनिक कंपाउंड का हम लोग लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं, मतलब कितना एनर्जी रिलीज हुआ। समझ में आ रहा है? इन द सेम वे हम लोग MgCl2 का भी निकाल सकते हैं, MgO का निकाल सकते हैं। दिस इज फॉर 11 एंड 12। दिस इज फॉर 11 एंड 12, ठीक है। क्लास 10 व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? क्लास 10 raise your hand. What is coordinate bond, my dear student? चलो कोई बात नहीं है, शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है। शर्माओगे तो जिसने किया शर्म उसका फूटा करम। समझ में आ रहा है? इसलिए हाँ चलो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ इसमें थोड़ा सा और रेक्टिफाई कर लो। द ट्रांसफरेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू द एडजेसेंट एटम बट शेयरिंग बाय बोथ एटम्स, बट शेयरिंग बाय बोथ एटम्स। क्लियर? 2 फेमस एग्जांपल तुम लोग के बुक में है, कौन कौन सा? अमोनियम और हाइड्रोजन। वेरी गुड। अमोनियम है, अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन। अमोनियम आयन कैसे बनता है? अमोनिया प्लस, देखो जिस वर्ड के, देखो स्टूडेंट जो है ना गड़बड़ क्या करता है, एक तो अमोनिया लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है अमोनियम। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है? अमोनिया का मतलब तो NaCl होता है ना, लेकिन अमोनियम का मतलब क्या होता है? जब भी लास्ट में EM आए, ये वर्ड समझ जाना कि उस पे पॉजिटिव चार्ज है। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, पॉजिटिव के लिए EM। समझ में आ रहा है? उसी तरह अमोनियम, अमोनियम मतलब when ammonia acid one proton form ammonium। ठीक है, तो अमोनिया का क्या होता है थोड़ा छोटे बच्चों के लिए भी बता दे रहा हूँ। 9th का क्लास है, 11 12 वाले और मत होना, ये तो तुम लोग पढ़ के बैठे हो।
हाँ, ये है अमोनिया। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर की एसिडिक इन नेचर? अमोनिया बेसिक है या एसिडिक है? और अगर बेसिक है तो क्यों है, एसिडिक है तो क्यों है? बताओ। अमोनिया बेसिक है कि एसिडिक है? अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। व्हाई बेसिक इन नेचर? Because when it is dissolved in water, it produces hydroxyl ion. मैं अमोनिया बोल रहा हूँ, नॉट अमोनिया। अमोनिया में कहाँ से हो चार्ज है माय डियर? सर अगर वो हमको अगर अभी आ रहा है, वो अगर आ रहा है अभी, बताओ। सर due to presence of lone pair electron, due to presence of lone pair electron, ammonia is basic in, ठीक है। और तुम बोलो कि सर ये तो बताया नहीं गया है, जिसके पास लोन पेयर होता है वो लिविस बेस होता है। एसिड और बेस का डेफिनेशन सिर्फ एक ही नहीं है कि जो H प्लस देता है वो एसिड है और जो OH माइनस देता है वो बेस होता है। नो, सिर्फ एक ही डेफिनेशन नहीं है। आर्हेनियस थियरी है, उसके बाद लिविस एसिड है, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस है, उसके बाद लक्स फूड है, उसके बाद उसानोविच है। 5 डेफिनेशन है, 5 एसिडिक बेस का। समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू लिविस थियरी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। और बेसिक नेचर है बोलने से, लोन पेयर होने से क्या होता है? अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देता है। जो लिविस बेस जिसके पास लोन पेयर होगा वो लूजिंग टेंडेंसी रखता है देने का, लोन पेयर, ठीक है, उसको बेस बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा अमोनियम आयन, लाइक दिस। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है क्लास 10 के बच्चों के लिए। ये देखो ऐसे ही बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ठीक है, जिसको डायरेक्टिव बॉन्ड भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्टिव बॉन्ड। क्लियर? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन मींस वाटर प्लस H प्लस। Okay, what is the shape of hydrogen? Water, H, O, H, 2 lone pair electron. In water there are 2 lone pair electron. 1 lone pair electron involved in coordinate bond like this and form hydronium and coordinate bond like this. इसके बारे में एक चीज और बताना चाहता हूं मैं तुम लोगों को। H प्लस जो होता है ना, H प्लस जो लिखता है वो रॉन्ग होता है, गलत। H प्लस डज नॉट एग्जिस्ट, H प्लस डज नॉट एग्जिस्ट। तो H प्लस बनता कहाँ है? H प्लस नॉर्मली बनता कहाँ है? वाटर में। कहाँ बनता है? वाटर में। कौन बनाता है? एसिड। कौन बनाता है? एसिड। देखो ये तुम्हारा पानी है, ये वाटर है, और इसमें तुमने एसिड डाल दिया, कोई एसिड, जैसे मान लो मैंने HCl डाल दिया, तो HCl डालोगे तो क्या देगा? H प्लस और Cl माइनस। चलो इसमें H दे दिया और Cl माइनस दे दिया, तो होता क्या है कि जैसे ये H प्लस बनता है, यहाँ पे जैसे ही बनता है, इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत जो है इसके साथ कौन सा बॉन्ड बना देता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो H प्लस ऑलवेज एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियम आयन। H plus does not exist. Either you should write H plus aqueous in this way, this is correct, or hydronium. H plus simply does not exist.
समझ में आ रहा है? ओके। और कहीं बताओ जिसमें क्वार्ट दो तो हो गया, एक अमोनियम आयन और एक हाइड्रोजन। आप कोई बताओ और कोई कंपाउंड बताओ जिसमें कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। अच्छा, जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। जिसमें कोवैलेंट होता है प्योरली वो कोवैलेंट होता है। तो जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा वो कौन सा कंपाउंड बोला जाएगा? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नाम सुना होगा। कितने टाइप का सॉल्ट होता है? क्लास 10 के सिलेबस में है। एसिड बेस सॉल्ट में 6 टाइप का दिया है सॉल्ट। तो 3 सिलेबस में, 3 नहीं है। कौन कौन सा सिलेबस में है? नॉर्मल, एसिडिक, बेसिक, और बाकी 3 नहीं है। कौन कौन से नहीं है? मिक्स्ड, डबल एंड कॉम्प्लेक्स। तो देखो कॉम्प्लेक्स समझ में आ रहा है? क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का कोई एग्जांपल जानते हो तुम लोग? सोडियम आर्जेंट। हाँ, वेरी गुड। सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड और K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब देखो तुम बोलोगे कि सर आप पढ़ाते पढ़ाते इस पे आ गए, ये तो सब बाउंस जा रहा है। 12 के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। 12 में है तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कि नहीं है? उसमें पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही पढ़ना है। समझ में आ रहा है? जिसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड ठीक नहीं है वो मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। ये मेरा फेवरेट चैप्टर होता है। मैं केमिस्ट्री में ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और बहुत मजा भी आता है। और इसे बोर्ड एग्जाम में बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आया है आईएससी बोर्ड में। समझ में आ रहा है? तो 3 टाइप का हो गया। सेकेंडरी बॉन्ड कौन सा होता है? ये तो प्राइमरी बॉन्ड था। सेकेंडरी बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड कौन जानता है? चलो बताओ। हाइड्रोजन बॉन्ड What is hydrogen bond? The bond which is formed between हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब एक तो हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा, दूसरे के साथ ही तो बनाना है ना? तो एक तो हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम बताओ। हाँ, फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ पीरियोडिक टेबल, सेकंड ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट, एंड थर्ड नाइट्रोजन। वेरी गुड, क्लियर? बट यही 3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये आता है जेई में। जेई में ये क्वेश्चन कई बार आया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनता है? किसके साथ बनता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड, और हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन लाइक दिस। ठीक है? जैसे इसका नाम तो सुना होगा, ये कौन सा कंपाउंड है? HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा कि नहीं होगा HF का? होगा ना? ठीक है? कैसे बनता है ध्यान से देखो। H और F के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है कि नहीं है? है ना? इस पे निगेटिव चार्ज पार्शियली और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं होता है? बताओ। हो गया।
अब ये निगेटिव इसके बीच में पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? ये हो गया। उसी तरह वाटर, अगर मैं तुमसे पूछूं, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और बता रहा हूं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसका हाइड्राइड क्या होगा, H2O, इसका हाइड्राइड होगा H2O, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करो तो एक क्वेश्चन बन जाएगा। कौन सा क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि H2O इज लिक्विड whereas H2S is, क्या लिखूं? हाँ, चलो Why? तो H2O लिक्विड क्यों है? बिकॉज इसमें इन H2O इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, बट इसमें क्या होता है, डज नॉट प्रेजेंट, दैट इज द सेम इज एब्सेंट, दैट्स व्हाई। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंपाउंड। फिजिकल स्टेट, इसमें H2O is liquid, why? Because in water intermolecular hydrogen bond is present, but in case of H2S, so hydrogen bond is a secondary bond। कोई ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जिसमें सब टाइप का बॉन्ड है। ये आईटी में आया था क्वेश्चन, और एक जगह और आया, उसके बाद मेंस में भी। हाँ चलो, तुमने बताया कुछ को कोशिश किया है। NH4Cl, इसमें कौन कौन सा बॉन्ड होगा? हाँ, ये हो गया तुम्हारा अमोनिया का कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। और ये हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, सॉरी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। तो ये प्लस और निगेटिव के बीच में क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड। तो तीनों बॉन्ड है, बट मैं बोल रहा हूँ सब टाइप ऑफ बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। याद कर लो, लिख लो, कहीं हो सकता है कि जेई वगैरह में कहां जाए, चलो हो सकता है कि कहीं आ जाए एग्जाम में। कॉपर सल्फेट, इसका नाम सुने हो, नोट कर लो। इसका नाम क्या है, ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल क्यों इसका नाम है? हाँ, क्योंकि ब्लू कलर का है, क्योंकि ब्लू है पानी, पानी है ना, कि नहीं है? हाँ। अब ये बताओ इसमें कौन कौन सा बॉन्ड है? सब टाइप का बॉन्ड है, ठीक है, ऑल टाइप। इसको लिख लो। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, कोवैलेंट भी है, आयनिक भी है, कोऑर्डिनेट भी है। अच्छा, 11-12 के लिए अब मैं थोड़ा सा कुछ बता देना चाहता हूँ केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली हम लोग लास्ट 10 इयर्स का पेपर देखोगे, जेईई मेंस, नीट का भी देखोगे, ठीक है। तो इससे केमिकल बॉन्डिंग से 3-4 क्वेश्चन 20 नंबर का तो ऐसे ही आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। जिसका केमिकल बॉन्डिंग ठीक है उसका केमिस्ट्री ठीक है, जिसका केमिकल बॉन्डिंग ठीक नहीं है उसका कुछ भी ठीक नहीं है। समझ में आ रहा है ना, उसका केमिस्ट्री में सही बैठा हुआ है, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना? केमिकल बॉन्डिंग पे बहुत ही स्ट्रेस देना है, ठीक से समझना है। कुछ है नहीं भाई, कुछ भी नहीं है, फंडा क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, इट्स टू इजी। अगर नहीं समझ में आएगा तो बहुत मुश्किल है। समझ में आ रहा है? आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इवन जेईई एडवांस में भी आईटी का लोग बोलता है आईटी का क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है, अरे नहीं होता है। प्रैक्टिस करके देखो एक बार। कोई मेहनत ही नहीं करता है तो उसके लिए तुम क्या करोगे? पहले तो मेहनत करो, समझो उस चीज को। जैसे कुछ 11-12 के लिए, 10 वाले थोड़ा सा बोर हो जाएंगे आई थिंक, ठीक है? चलो बताओ, आजकल क्वेश्चन आ रहा है कि 5-6 कंपाउंड दे रहा है, ठीक है? 5-6 कंपाउंड दे देगा, इवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी दे देगा, क्योंकि उसमें भी तो केमिकल बॉन्डिंग है। और पूछ दे रहा है कि इसका शेप ज्योमेट्री क्या है, आइसो स्ट्रक्चरल है, या कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल है। आइसो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? तो ये बताओ कि जैसे मैं 4-5 लिख दे रहा हूं, ठीक है? ऐसे तुम्हारा मीथेन हो गया, और सल्फेट आयन हो गया, कार्बोनेट आयन हो गया, I3+ हो गया, XeO4 हो गया, XeF2 हो गया, XeF6 हो गया, XeO2F2 हो गया, SF4 हो गया। ये सब मॉलिक्यूल दे दिया। पूछेगा इसमें से कौन सा, कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका सेम शेप है, ठीक है? तो इसके लिए क्या करोगे? कुछ 11 में सीखा है, 11 का पार्ट है। तुम 11 में हो, 12 में बोलो। हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ, तो चलो बताओ। सबसे पहले देखो, 3 चीज इसके लिए तुमको जानकारी होना चाहिए। यू मस्ट नो 3 थिंग्स टू प्रेडिक्ट इट्स स्ट्रक्चरल सेट। ओके, पहला हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन शेप मिलना चाहिए, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर ही डिसाइड करता है। ये तीनों जिसका सेम है वो आइसो स्ट्रक्चरल होगा। समझ में आ रहा है? मीथेन का क्या होगा बताओ? फॉर्मूला बना दो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जानते हो फॉर्मूला? नहीं जानते हो? जानते हो? देखो, फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम, प्लस जितना मोनोवैलेंट एटम होगा उतना, ठीक है? नॉट डाइवैलेंट, जिसकी वैलेंसी 1 होगी, प्लस जितना निगेटिव चार्ज होगा उसको ऐड कर दो, माइनस जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसको माइनस कर दो। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब जैसे मीथेन का निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, बताओ क्या होगा? हाफ पॉजिटिव चार्ज कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन का? 4, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितना है? 4, नो पॉजिटिव निगेटिव सब 0 0 इक्वल टू 4, कितना आ गया? 4। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना आ गया? sp3। क्या आ गया? 4 मतलब 4 ऑर्बिटल। S से स्टार्ट करो, 1s3p, sp3। क्लियर? बॉन्ड पेयर कितना है इसमें? बॉन्ड पेयर कितना है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ना, तो 4 हो गया। लोन पेयर कितना है? H माइनस pp, लोन पेयर निकल जाएगा तो 0। तो जिसमें लोन पेयर 0 होता है, बॉन्ड पेयर 4 होता है, दैट इज sp3 में जिसका होता है वो क्या होता है? रेगुलर टेट्राहेड्रल। क्या होता है? रेगुलर टेट्राहेड्रल। अब इसका निकालो, एक चीज कर दो, हाफ सल्फर का 6, ये डाइवैलेंट हो गया, प्लस 0, माइनस 2 है तो प्लस कर दो, कितना हो गया? 4। ये चीज कर दो, कितना हो गया? sp3। बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 4। देखो 4 के साथ
बना रहा है कि नहीं बना रहा है? और लोन पेयर कितना हो गया? 4 - 4 0। इसका मतलब मीथेन का और सल्फेट का दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, इसलिए दोनों क्या होगा? आइसोस्ट्रक्चर। क्या होगा? आइसोस्ट्रक्चर। उसी तरह कार्बोनेट का देखो तो क्या आ रहा है? H = ½ 4, ऑक्सीजन के लिए 0 -2 है तो +2 कर दो, कितना आ गया? 3 sp2। क्या आ गया? sp2। अब sp2 किसका होता है? फिर बॉन्ड पेयर देख लो, बॉन्ड पेयर इसका जो कितना आ गया? 3। लोन पेयर कितना आ गया? 0। तो जिसका sp2 होता है वो क्या होता है? ट्रायगोनल प्लानर। क्या होता है? ट्रायगोनल प्लानर होता है, पता है ना? अब ये बताओ कि मीथेन और ये कार्बोनेट आइसोस्ट्रक्चरल है? नहीं है। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से I3+। अब बताओ I3+ का मतलब क्या है? इसमें तो सेंट्रल एटम ही गायब है। पानी में आयोडीन को डिसॉल्व कर सकते हो? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है तुमको। Iodine does not dissolve in water. I2 does not dissolve in. To make it dissolve, some Ki we have to add it. थोड़ा सा Ki डाल दो डिसॉल्व हो जाएगा। Ki plus I2 क्या होगा? Ki3+ हो गया कि नहीं हो गया? आयनिक कंपाउंड बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? देखो इसमें K+ हो गया, इसमें माइनस हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो एक आयनिक कंपाउंड हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ki3 it get dissolved, I2 get dissolved। वही I3+ है, वही I3+ है। इसका मतलब कि I3+ को हम क्या लिख सकते हैं? I.I2+ लिख सकते हैं। ये आईटी में आया है क्वेश्चन। ये चीज का जो क्या होगा? हाफ 7 + 2 - 1। 7 + 2 मोनोवैलेंट और प्लस है तो माइनस। कितना आ जाएगा बताओ? नौ और उसमें से 8 का 4 आ रहा है, यही ना? वेरी गुड। 4 आएगा तो क्या होगा? sp3 आएगा। बॉन्ड पेयर क्या होगा? कितने के साथ बॉन्ड पेयर बना रहा है? 2 के साथ, तो 2 लोन पेयर कितना होगा? 2। मतलब ये भी आइसोस्ट्रक्चरल। उसी तरह बाकी दोनों निकाल सकते हैं। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? किसी को इसमें प्रॉब्लम बताओ? हाइब्रिडाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाइब्रिडाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जिसका नहीं है क्लियर, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगा, ठीक है? और क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ? केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट क्या होता है? क्लास 9-10 का कंप्लीट हो गया है। क्लास 9-10 का केमिकल बॉन्डिंग में मैंने स्टार्ट किया व्हाट इज बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तक लेके चला गया। यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो गया तुम लोगों का 9-10 का। अब 11 का थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है? इतना ही है सिलेबस में और कुछ नहीं है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? एंड डाइपोल मोमेंट से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? वेरी गुड। और वेदर इट इज पोलर और नॉन पोलर, वेदर इट इज पोलर और नॉन पोलर, इट इज वेक्टर और स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? ऊपर है ध्यान वो, इसको नीचे लेके आते हैं।
सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होता है? अमोनिया का होता है या वाटर का होता है? वाटर का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, इसीलिए उसमें सारे डिसॉल्व हो जाते हैं। मोर द डाइपोल मोमेंट मोर विल बी पोलर। क्लियर? और डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल नहीं आता एक्चुअली में, पोलैरिटी बताने को आता है, उसके बाद शेप बताने को आता है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। ये बताओ तो कौन सा कंपाउंड है, कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है? As the bond angle increases, dipole moment decreases. देखो इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इधर जाएगा और इसका इधर जाएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। और इसका इधर गया और इसका इधर गया, तो नेट इधर जाएगा, इसलिए सेकंड वाले का ज्यादा होगा, फिर थर्ड वाले का, फिर लास्ट। तो ये भी आता है, समझ में आ रहा है? जो एग्जाम में आ चुका है। अच्छा, एक लास्ट चीज मैं पूछ रहा हूँ, 9, 10, 11, 12, व्हाट डू यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? What do you mean by isoelectronic species? Yes, चलो पीछे से बताओ, isoelectronic क्या होता है? What do you mean by isoelectronic species? अच्छा, 9 नहीं बताएगा, 10 तो बता सकता है। चलो 12, having the same number of electrons, having the same number of electrons, the species which have the same number of electrons। ये देखो, नियॉन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, नाइट्राइड आयन, these all are isoelectronic। Iso means equal, electronic means electron। The species which have the same number of electron is called। अब इसी को अरेंज करने को देता है, ये भी जेई में आ चुका है, अरेंज कर सकते हो तो। The size of an ion is greater than size of cation। Clear? तो ये तुम्हारा साइज होता है, ठीक है।